In our last lecture, we have studied about the classification of polymers. Again, mode of polymerization. In the mode of polymerization, we studied about the addition polymerization, condensation polymerization, as well as ring opening polymerization. On the basis of these processes, some polymers are formed which are basically very important polymers we are which we are using in our daily life. So here are some important polymers which we have to study. The first polymer is rubber. Rubber is very important polymer, that is we are using this kind of polymer from our childhood. So these rubbers are the elastomers. We are almost we are known that this rubber has elasticity. It is elastic in nature. Okay, when we uh, when we apply pressure on it, it can expand, and when we release that pressure, it can regain their size, and that is the property which is elasticity. This contain means that rubber is containing that property which is elasticity. The example of this rubber rubber is balloon, shoe shells, tires, surgeon's gloves. These are the example of this rubber. Okay, they are made from elastomeric material, that is rubber. So first of all, first type of rubber is natural rubber. This is the kind of rubber which is occurred naturally. Okay, monomer of natural rubber is isoprene. So what is the monomer of the rubber? This is isoprene. So this isoprene is 2-methyl-1,3-butadiene. Okay, this is the structure for the isoprene. Okay, सो इसका नेमिंग देख लीजिए. यहाँ पे नेमिंग कैसा हो रहा है. यहाँ पे हियर 2-methyl-1,3-butadiene. 2-methyl यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन. नंबरिंग यहाँ से क्यों हुआ है? बिकॉज ये जो यूनिट है, ये जो स्पीसीज या फिर ये जो CH3 मॉलिक्यूल है, मिथिल है, वो यहाँ से अटैच है. सो इधर से नंबरिंग हुआ है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 और 4. सेकंड पोजीशन में मिथिल ग्रुप है, इसीलिए 2 मिथिल. अब 1 फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और उसकी वजह से इसका नाम क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन. 2-methyl-1,3-butadiene. ओके, so here the natural rubber is high molecular mass linear molecule of isoprene. नेचुरल रबर जो है वो कैसा है? उसका मास कैसा है? हाई मॉलिक्यूलर मास है एंड लीनियर मॉलिक्यूल है. इट्स मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम 1,30,000 माइक्रोन टू 3,40,000 micron. That is the number of monomer unit varies from 2,000 ओके. ये जो मीन्स क्या है? नेचुरल रबर है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा है? लार्जर है, बिगर है. ओके, natural rubber having
high molecular mass and linear polymer of isoprene. It is linear polymer of isoprene. Its molecular mass varies from 1,30,000 to 3,40,000 माइक्रोन. सो इसमें जो यूनिट्स होते हैं मोनोमर के कितने होते हैं, 2000 से लेकर 5000 तक यूनिट्स उसमें हो सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रबर. सो नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द नेचुरल रबर. यहाँ पे तो हमने देख लिया नेचुरल रबर मतलब आइसोप्रीन एक उसका यूनिट है, बट हाउ इट कैन इलोंगेटेड और हाउ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज फॉर्मिंग. सो हियर दिस इज द नेचुरल रबर. ओके, यहाँ पर आइसोप्रीन यूनिट है. दिस इज आइसोप्रीन यूनिट, फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट, देन हियर सेकंड आइसोप्रीन यूनिट, और ये जो है वो थर्ड आइसोप्रीन यूनिट्स है. मीन्स ये मोनोमर्स जो है एक दूसरे के साथ में लिंकेज फॉर्म करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, रबर फॉर्म कर रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द आइसोप्रीन. Reaction involved in the formation of natural rubber by the process of addition polymerization as follows. रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस फॉर्म हो रही है. ओके, तो इसका पॉलीमराइजेशन कैसा हो रहा है ये हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शन है. ओके स्टूडेंट, हियर इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ द आइसोप्रीन. आइसोप्रीन इज अ मोनोमर विच कैन फॉर्म रबर. सो दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट. ओके, फ्रॉम हियर this can polymerized and can form polyisoprene or rubber. This is the polymerization process in which these isoprene units get polymerized and can form polyisoprene rubber. ये क्या फॉर्म कर रहा है, पॉलीआइसोप्रीन रबर फॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है नेचुरल रबर की, तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज दी वाली है. दिस आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल रबर. पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैज़ सीस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस chains held together by weak van der Waals forces and it has coiled structure. जो पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सीस कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज द सीस कॉन्फ़िगरेशन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है इसमें देखिए यहाँ पे दीज आर दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. ओके, इट हैज़ अ सीस कॉन्फ़िगरेशन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज़ सीस कॉन्फ़िगरेशन. अगेन हियर आर दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. These are the carbon carbon double bond having cis configuration. Okay, then and having weak van der Waals forces. So it having weak van der Waals forces, that means it is elastic in nature and has coil like structure. It has been stretched like spring. ये कैसे स्प्रिंग से जैसा स्ट्रेच हो सकता है and it can exhibit elastic properties. Vulcanization of rubber. To improve the physical properties of natural rubber, a process of vulcanization is carried out. So हमको अगर इम्प्रूव करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नेचुरल रबर की तो वहाँ पे प्रोसेस है, दैट इज़ द वल्कनाइजेशन प्रोसेस विच इज़ carried out by Charles Goodyear in 1839. An American inventor invented the process of vulcanization. This is the process for making the rubbers. Okay, this vulcanization process is a very important process. So let us see
about the vulcanization process. So this is the process by which network of crosslink is introduced into the elastomer called as vulcanization. So ये एक प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क होता है किसका, क्रॉस लिंक का, विच इज़ इंट्रोड्यूस टू इलास्टोमर्स. सो दिस इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन. सो वल्कनाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क होता है जो क्रॉस लिंकिंग का, वो इंट्रोड्यूस होता है किसमें, ट्रांसफॉर्म होता है या इंट्रोड्यूस होता है इलास्टोमर्स में, दैट इज़ नोन टू बी वल्कनाइजेशन. द profound effect of vulcanization enhance the properties like tensile strength, stiffness, elasticity, toughness, etc. of natural rubber. सल्फर वल्कनाइजेशन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोसेस. सल्फर का जो वल्कनाइजेशन है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोसेस है जिसमें सल्फर फॉर्म करता है क्या, क्रॉस लिंक. ओके, सल्फर कैन फॉर्म क्रॉस लिंक बिटवीन द polyisoprene chain which result in the improved property of natural rubber. Okay, so vulcanization process is very important for making the network of crosslink into the elastomers and can enhance their properties like tensile strength, stiffness, elasticity, toughness, etc. Okay, then sulfur vulcanization is most frequently processed and its most useful process. Okay, and sulfur can form cross linking with the polyisoprene chain and this can result into the improved property of natural rubbers. So here next example of this important polymers is polythene. Okay, as we know we are using this polythene in our day to day life. Okay, and now this being the very important thing of our life, so it is very curious, means it is very important and very curious topic to study. Okay, so polythene is the simplest and most commonly used hydrocarbon thermoplastic and it has following structure. So this is the structure for polythene. Okay, so number of ethene get combined with each other and can form the structure that is polythene. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो इथीन का स्ट्रक्चर है जो कि पॉलीमराइज्ड हो चुका है. ओके, n नंबर्स लग गए मतलब इट मीन्स इट्स पॉलीमराइज्ड एंड कैन फॉर्म द पॉलीथीन. ओके, हियर द IUPAC नेम फॉर पॉलीइथिलीन इज पॉलीथीन. ये इसका IUPAC नेम है. पॉलीइथिलीन का IUPAC नेम क्या है, पॉलीथीन है. And polythene is of two kinds, namely low density polythene and high density polythene. So firstly we have to remember that polythene is of two kinds, that is namely that is low density polythene, that is known as LDP, and again one of the polythene that is हाई डेंसिटी पॉलीथीन. सो ऐसे दो तरीके के क्या है पॉलीथीन है, LDP एंड HDP. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग. in your examination it will be asked as write a brief note on polythene. Then you have to remember that this polymer is simplest and most useful thermoplastics and its structure, and again about the two types of polythene, that is LDP and HDP, that is low density polymer and high density polymer, polythene. Okay, so first of all we see the low density polythene. Okay, let's start it. So low density polythene is obtained by the polymerization of ethylene
अंडर द हाई प्रेशर। सो ये कैसे फॉर्म होता है? इथिलीन को अंडर हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर पे जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ traces of O2 or peroxide as initiator, then it can form the low density polymer. It has general reaction, that is this is the reaction for this low density polythene, जिसमें हमको क्या यूज़ करना है? इथिलीन यूज़ करना है, इथिलीन एज अ रिएक्टेंट। देन इन प्रेजेंस ऑफ अंडर प्रेशर एंड अंडर temperature and with the traces of O2, it can form low density polythene. The mechanism of this reaction involves free radical addition. This mechanism involves free radical addition and hydrogen atom abstraction. यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन एटम का क्या हो रहा है? एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। देन लेटर result in the branching. As a result, the chain are loosely held and the polymer has low density. ये जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रांचिंग फॉर्म हो रही है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेन्स आर लूजली हेल्ड। इसकी जो चेन्स है, इथिलीन की जो चेन्स है वो कैसी होती है? लूजली हेल्ड होती है, लूजली बॉन्डेड होती है एंड so that this polymer has low density. Okay, so if you have question that why it is called as low density polythene, then your answer will be that because when branching occurs, then as the result of these chains are loosely bonded and as a result it has low density, so that this polymer is known as low density polythene. Okay, the properties of low density polythene is this low density polythene films are extremely flexible but tough, chemically inert and moisture resistant. It has poor conductor of electricity with melting point 110 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई है लो डेंसिटी पॉलीथीन की. तो लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, बट ये कैसा होता है? टफ होता है. केमिकली कैसा होता है? इनर्ट होता है और मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है. सो दैट इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 110 डिग्री सेल्सियस. अब इसके यूजेस क्या होते हैं? व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन? सो हियर आर द यूजेस. लो डेंसिटी पॉलीथीन इज मेनली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स for agriculture, irrigation, domestic water line connection, as well as the insulation to the electric cables. Because of low poor conductor of electricity or resistant toward the electricity, it can use in the insulation to the electrical bulb or cables, electrical cables. Okay, as well as it can use as a pipe for agriculture, irrigation, domestic water line connection. Okay, it has also used in submarine cable insulation. It is used in the production of extruded film sheets, mainly packaging and household uses like preparation of squeeze bottle, attractive containers, etc. So it is used in our day to day life for the household work purposes like squeeze bottles, attractive containers, as well as used in the extruded films, etc. Okay, this is all about the low density polythene. Okay, low density polythene has low density because of the loosely bonded chains. Okay, so it has the property because that is it has flexibility but it's tough.
chemically inert and moisture resistance, and it is generally used for making pipes, again for household work purposes, and there are many use of the low density polythene. Then these are the uses of the low density polythene: for making pipes, for making squeeze bottles, etc. Again now we are seeing that high density polythene. So here the high density polyethylene. So it is essentially a linear polymer which having high density due to the close packing. So उसमें क्या होता है, डेंसिटी लो क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे लूजली बॉन्ड होते हैं, लूज बॉन्ड होते हैं चेन्स के. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ लीनियर पॉलीमर एंड इट हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग. इसकी पैकिंग जैसी कैसी है, क्लोज पैकिंग है. और वहाँ पे जो लो डेंसिटी पॉलीथीन हमने जो पढ़ा है उसकी जैसी उसकी जो पैकेजिंग होती है वो कैसी होती है, वो जो पैकेजिंग होती है वो क्लोज पैकिंग नहीं होती. ओके, बिकॉज ऑफ द ब्रांचिंग. सो हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, HDP इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन. एज वी नो पॉलीथीन इज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर दैट इज इथिलीन. सो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है, इथीन यूज़ हो रहा है. एंड in the presence of Ziegler-Natta catalyst and the combination of triethyl aluminium with titanium tetrachloride at a temperature of 330 Kelvin to 343 Kelvin, and the pressure is 6 to 7 atm. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्मेशन के लिए Ziegler-Natta catalyst is very important. Without Ziegler-Natta catalyst this reaction cannot carried out. Again triethyl aluminium with titanium tetrachloride is also important for this reaction. Okay, here properties of high density polythene. हाई डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट्स क्रिस्टलाइन इन नेचर and melting point is ranges from 144 degree Celsius to 150 degree Celsius. It has very much high melting point. Okay, it is much stiffer than the low density polythene and has high tensile strength and hardness. सो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा है, बट इट इज़ स्टीफर देन लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल देन दी LDP. ओके, सो यूजेस ऑफ दिस HDP मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज व्हाट, HDP. High density polythene is used in the manufacturing of the toys and other household article like bucket, dustbin, bottles, pipes, etc. So high density polythene भी as like LDP वैसे ही उसका जैसा उसका हाउसहोल्ड आर्टिकल्स में यूज़ होता था, यहाँ पर भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ आल्सो यूज्ड इन हाउसहोल्ड आर्टिकल्स लाइक बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स, etc. इट इज़ used to prepare laboratory wares and other object where high tensile strength and stiffness is required. Okay, HDP भी जो है laboratory wares में and other object में यूज़ होता है. Means it's a very useful polymer. Okay, this is all about the polythene. Okay, you have to understand that polythene it has monomer that is ethene. Then again it has
two kinds, that is low density polythene and high density polythene. low density polythene कैसे प्रिपेयर हो रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे प्रिपेयर हो रहा है, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर पॉलीथीन पे क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो इसको आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए. So this is the example for the high density polyethylene. Here you see that this is the toy for babies, but this is the picture that is showing dustbins. These are the bigger dustbins which are using in our household works. Okay, household works means दिस इज़ यूज्ड इन एवरीवेयर. ओके, सो इसको बनाने के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन ही यूज़ किया जाता है. सो इट्स अ वेरी यूजफुल टॉपिक. दिस प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, एंड when you get your paper or when you having that question, you have to write down all the things about this. So next example is of टेफ्लॉन. टेफ्लॉन भी हमने रेगुलर लाइफ में यूज़ किया है, लेकिन एट प्रेजेंट यू डोंट नो अबाउट टेफ्लॉन. ओके, बट टेफ्लॉन जो है वो यूज़फुल होता है, लेबोरेटरीज़ में यूज़फुल होता है, पैकिंग के लिए यूज़फुल होता है. सो हम देखते हैं कि अभी ये टेफ्लॉन क्या है, केमिकली ये कैसा बना हुआ है. ओके, केमिकली टेफ्लॉन इज़ polytetrafluoroethylene. Okay, it's having monomer that is tetrafluoroethylene, जो पॉलीमराइज्ड होके क्या फॉर्म हो रहा है, polytetrafluoroethylene. Okay, these monomers used in the preparation of Teflon is tetrafluoroethylene, which is gas at room temperature. देखिए केमिस्ट्री कितनी एन्जॉयफुल एंड मैजिकल है. जो टेफ्लॉन आप यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड इन नेचर है, बट उसका जो मोनोमर है एट द रूम टेम्परेचर कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ गैस. गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में. मीन्स केमिस्ट्री इज़ वेरी मैजिकल. ओके, पढ़ोगे तो एन्जॉय भी होगा उसमें, या फिर आपको इसमें खुद इंटरेस्ट आएगा कि कैसे एक गैस को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, ये भी एक मैजिक ही है. ओके, इजंट इट? यस, दिस इज़ वेरी मैजिकल रिएक्शन. Tetrafluoroethylene is polymerized by using free radical initiators such as hydrogen peroxide or ammonium persulfate at high pressure. So टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है उसको जब पॉलीमराइज करते हैं बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ फ्री रेडिकल इनिशिएटर और अमोनियम परसल्फेट. और प्रेशर कैसा होना चाहिए यहाँ पे, हाई प्रेशर में होना चाहिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए. सो हियर टेट्राफ्लोरोइथीन यहाँ पे मोनोमर लिया है. ऑन द पोलीमराइजेशन प्रोसेस इट कैन फॉर्म द टेफ्लॉन. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, टेफ्लॉन फॉर्म हो रहा है. अब टेफ्लॉन जो है वो यूज़ कहाँ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. टेफ्लॉन जो होता है इट्स वेरी इलास्टिक इन नेचर, इट्स बॉन्डिंग इज़ वेरी लूज and due to that it's very elastic in nature. So Teflon is tough, chemically inert and resist to heat and attack by corrosive so students, carbon and fluorine bond is very difficult to break and remain unaffected by corrosive alkali organic solvent.
सो ये जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने में. सो ये अनअफेक्टेड होता है बाय करोजिव अल्कली. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उसके जो लीड्स होते हैं, केमिकल्स के बॉटल्स के जो लीड होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेफ्लॉन से बनाए हुए होते हैं. अगेन टेफ्लॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ऑयल सील्स एंड गैस्केट्स etc. ओके, these are the uses of Teflon. Okay, now in our today's topics last part is polyacrylonitrile. ये लास्ट पार्ट है आज के हमारे सेशन का, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. अब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कैसा प्रिपेयर्ड हो रहा है? बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल. एक्रिलोनाइट्राइल का क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है एंड कैन फॉर्म द पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड बाय यूजिंग द परऑक्साइड इनिशिएटर. आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है ये बात. हमने अभी तक जितने भी पॉलीमर पढ़े हैं उसमें क्या हो रहा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है. ओके, हियर आर दी एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. एंड अगेन वन कॉमन थिंग इज हर पॉलीमराइजेशन में परऑक्साइड का ही यूज़ हो रहा है. जैसे बेंजोइल परऑक्साइड है. ओके, उसके बाद में अगेन सम काइंड ऑफ परऑक्साइड आर यूज्ड फॉर दी मेकिंग और फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक्रिलोनाइट्राइल लिया है. बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बाय यूजिंग परऑक्साइड यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. सो नाउ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज रिसेम्बल्ड वूल एंड इट इज़ यूज एज वूल सब्सटीट्यूट एंड फॉर मेकिंग ऑर्लन और एक्रिलेन. ओके, सो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एज ए वूल या फिर सिंथेटिक वूल भी कह सकते हैं हम, उस तरीके से उसका यूज़ होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का. एंड अगेन इट कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ विच आर रेजिस्ट अस फ्रॉम द कूल extra cooling nature from cold. Okay, these are all very important polymers which are made by the addition polymerization process. आफ्टर दैट वी आर सीइंग द पॉलीअमाइड कंपाउंड जिसमें कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स है. तो अभी हमने जो पॉलीमर्स पढ़े हैं उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन है. एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक ही मोनोमर है जो नंबर ऑफ मोनोमर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं, पॉलीमराइज्ड हो रहे हैं एंड कैन फॉर्म अ सिंपल पॉलीमर. दैट इज़ द एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. बट अब हम जो इसके बाद में जो पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है. तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है? टू वेरियस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स. ओके, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या होंगे? रिएक्ट होंगे, जिसमें क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जैसा कोई एक मतलब बाय प्रोडक्ट है. वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, OH हो सकता है, सो सिंपल HCl हो सकता है. तो एक सिंपल बाय प्रोडक्ट इसमें क्या होगा? फॉर्म होगा. तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर एग्जामिनेशन. सो आपको ये सब ध्यान में रखना है. नेक्स्ट लेक्चर होगा फॉर दी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ओके, उसमें हम उसके एग्जाम्पल लेंगे और बाकी उसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.